So well, so I, Dr. Pankaj Kumar Goswami, again welcome you here in your subject EEC 3161 Electronics Engineering Lab. So here in this lab, we are going to understand a little more about the electronics component, their behavior, their statistic, their working, and characteristics. So if you go for that, I will be providing you the syllabus. After completion of this one, you would be getting a syllabus. So you all will be having like all these things related with this one. So first of all, let's begin with what exactly our experiment. So first we have this experiment as a VI characteristic of a diode. This experiment we are going to discuss on a virtual platform because physically we are not here. We are unable to see the things. So what we are doing, हम यहाँ पर इसको virtually करने की कोशिश करेंगे, है ना? We are going to do that. So important point is here. First of all, we need to understand that if suppose we are talking about the VI characteristic of a diode, so we must know कि किसकी characteristic निकालनी है, क्यों निकालनी है, डायोड क्या है, VI क्या होता है, that's all important to know. तो स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले इस ऑब्जेक्ट को समझने की कोशिश करते हैं कि what exactly this is the object. You are having a complete syllabus, or under this syllabus you will be studying, आप लोग पढ़ रहे होगे, you will be studying about the diode, about the semiconductor materials and all other things. Among them, now we are just going to work upon with the characteristic of a diode. So first of all, I just take care about this word diode. What exactly the diode? So important and very simple. Just understand the diode is nothing but a simple piece of semiconductor made up of two different type of semiconductor, which is P and N. So the complete name of this diode is PN junction diode. What we say here, it is a PN junction diode. So if you see here, so we have the first PN junction diode. This PN junction diode has this kind of a symbol. We have a symbolic notation of PN junction diode like this one. And it is made up of one P-type material, another N-type material. This is a semiconductor material. ऐसा होता है कि ये semiconductor materials होते हैं और इन semiconductor materials को बना के हम एक छोटा सा component create करते हैं. इस component का नाम होता है diode. अगर इसका हम सिंबल बनाते हैं, मैथमेटिकली इसको दिखाते हैं, तो हम इस तरीके से सिंबल दिखाएंगे नोटेशन में. और इस सिंबल के बाद में अगर हम इसका सर्किट डायग्राम बनाते हैं, तो वी हैव सर्किट लाइक दिस वन. If we see this diode, so we have arrow like shape. So where we have this line block, this blockage line, this shows us that this is the N terminal. तो डायोड के दो टर्मिनल होते हैं, एक P टर्मिनल और एक N टर्मिनल. जिस तरफ से ये बैक साइड होता है, this terminal is called as a P terminal. जहां पर ये ब्लॉकेज होता है, we say this is the N type material and this is the N terminal. अब डायोड का काम क्या होता है? डायोड एक अपने आप में एक इलेक्ट्रॉनिक स्विच है. What it is? It is switch. It means कि डायोड को हम सर्किट में जब यूज करते हैं तो ये ऑन और ऑफ स्विच की तरह काम करता है. इट कैन वर्क लाइक ऑन स्विच एंड ऑफ स्विच. अब ऑन और ऑफ करने के लिए क्या होता है? ऑन और ऑफ करने का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर कनेक्टिंग दिस डायोड इन फॉरवर्ड वाइज, दो टर्मिनोलॉजी होती है, यू मस्ट नो दैट, फॉरवर्ड एंड रिवर्स. जब डायोड का इंपॉर्टेंट एंड वेरी सिंपल, जब डायोड का पी टर्मिनल बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं, when the P terminal of diode is connected with the positive terminal of the battery, then we say this is a forward bias. और जब P terminal को हम नेगेटिव से कनेक्ट करते हैं, then we say this is the reverse bias. So if you see here, मैंने इस टर्मिनल का नाम बताया था P and this terminal was told as N. तो जब P को नेगेटिव से P को नेगेटिव से कनेक्ट करेंगे तो रिवर्स बाइस कहलाएगा ये, और P को पॉजिटिव से कनेक्ट करेंगे तो ये कहलाएगा फॉरवर्ड बाइस. अब क्या है और क्यों कनेक्ट होता है, दैट यू आर गोइंग टू डिस्कस विद इन योर क्लासेस, द थ्योरेटिकल क्लासेस. लेकिन मैं सिर्फ इतना कंप्लीट आपको कंट्रोल जिस देता हूं कि जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, इंपॉर्टेंट, आई लास्ट दिस क्वेश्चन टू यू, जब ये डायोड फॉरवर्ड बाइस्ड होता है तो ये ऑन हो जाता है, कंडक्टिंग हो जाता है. और जब ये रिवर्स बाइस्ड होता है तो ये ऑफ हो जाता है, नॉन कंडक्टिंग हो जाता है, स्विच ऑफ कंडीशन में काम करता है. तो हमारा जो टारगेट है वो टारगेट ये है कि जब ये हमारे पास डायोड है तो ये डायोड को वोल्टेज लगाने पर कैसे ऑन होता है और कैसे ऑफ होता है, इसको हम एक्सपेरिमेंटली समझने की कोशिश करें. सो दिस इज बेसिकली आवर टुडेज ऑब्जेक्टिव. सो आई एम रिपीटिंग, हमारा जो आज का ऑब्जेक्टिव है वो डायोड की कैरेक्टरिस्टिक, वोल्टेज और करंट, VI. इफ यू गो टू द ऑब्जेक्ट, दिस इज VI, वोल्टेज एंड करंट, V फॉर वोल्टेज एंड I फॉर करंट. कैरेक्टरिस्टिक मतलब बिहेवियर,
अगर हम ये वोल्टेज लगाएंगे तो करंट कैसा होगा। तो वी आई कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड, ये आज हमें स्टडी करनी है, ये आज हमारा एक्सपेरिमेंट का ऑब्जेक्टिव है। डायोड फॉरवर्ड वाइज ऑन, रिवर्स वाइज, अगर हम फॉरवर्ड वाइज का मतलब पॉजिटिव पी से, पी पॉजिटिव एंड नेगेटिव, फॉरवर्ड वाइज ऑन स्विच की तरह काम करेगा तो हमें फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक बना सकते हैं। जब हम इसको रिवर्स वाइज कनेक्ट कर रहे हैं यानी कि पी एन से और एन पी से, तो रिवर्स वाइज हो जाएगा, ऑफ स्विच की तरह काम करेगा। उस कैरेक्टरिस्टिक को हम लोग रिवर्स वाइज कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। तो ये आज हमारा टारगेट है यहाँ पर, इसको आज हम एक्सपेरिमेंट करने वाले हैं। So meanwhile, I'm just giving a little space to you. If you have any doubt, you can ask questions. So well, you see here, so we have diode. अब हमारे पास क्या है, डायोड है। हमारा टारगेट क्या है, इस डायोड को वोल्टेज और करंट देने पर इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स को प्लॉट करना। तो ये चेक किया गया, ऐसा देखा गया कि जब हम डायोड को फॉरवर्ड वाइज में करते हैं तब धीरे 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 जब उसको वोल्टेज बढ़ाना शुरू करते हैं तो एक टाइम तक तो कोई भी करंट नहीं फ्लो करता, और एक टाइम के बाद में करंट एकदम तेजी से फ्लो करने लगता है। इसका रीजन कुछ होता है। इसका रीजन क्या होता है, इसका रीजन ये होता है कि जो डायोड है, पीएन जंक्शन है, पीएन और एन जंक्शन, पी टाइप मेटेरियल एन टाइप मेटेरियल डायोड के अंदर जब एक दूसरे के पास आ जाते हैं तो उनके बीच में एक डिफ्यूजन की वजह से डिप्लीशन रीजन बन जाता है। क्या बन जाता है, डिप्लीशन रीजन। ये डिप्लीशन रीजन जो होता है खाली जगह जैसी होती है ना, और एक पोटेंशियल बैरियर बन जाता है जो डायोड से करंट फ्लो होने के लिए मना करता है। तो स्टार्टिंग में इस पोटेंशियल बैरियर का, जैसे आपने ये सपोज करो ये है, ये हो गया मान के चलो P और ये हो गया N। जैसे P और N को एक दूसरे के पास लाते हैं तो एक डिफ्यूजन का प्रोसेस होता है, और डिफ्यूजन प्रोसेस से जहां पे ये जंक्शन बनाते हैं वहां थोड़ा सा गैप क्रिएट हो जाता है और एक पोटेंशियल बैरियर जनरेट हो जाता है। अब ये डायोड हमें ऐसा मिला हुआ है फ्री स्टेट में। अब इस डायोड को अगर आपने एक्सटर्नल वोल्टेज से कनेक्ट किया तो पहले अगर आप इसको करंट फ्लो कराना चाहते हो तो पहले आपको ये खत्म करना पड़ेगा ना, डिप्लीशन रीजन। तो इस डिप्लीशन रीजन को खत्म करने के लिए स्टार्टिंग में थोड़ा सा पोटेंशियल देना पड़ता है। ये पोटेंशियल जब तक देते हैं तब तक कोई करंट नहीं बनता क्योंकि यहाँ पे डिप्लीशन होता है। जैसे ही ये डिप्लीशन रीजन खत्म होता है करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है और डायोड के अक्रॉस वोल्टेज ड्रॉप फर्दर फॉल नहीं होता। अब हम इसी को समझेंगे एक्सपेरिमेंट के थ्रू, ये हमारा मोटिव है आज का। सो लेट्स बिगिन विद दिस। कैसे करेंगे इस एक्सपेरिमेंट को, इसको समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड वाइज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सिलिकॉन डायोड, ये हमें आज यहाँ पर बनाना है। सो इफ यू सी हियर, यहाँ पर आप हमने एक सेटअप लिया हुआ है, एक्सपेरिमेंट का सेटअप बनाया हुआ है। इस एक्सपेरिमेंट के सेटअप पे हम यहाँ पर अगर जाएंगे तो वी हैव ऑल इंस्ट्रक्शंस, हम क्या क्या करना है, किन किन स्टेप्स पे करना है। यहाँ पर हम चाहेंगे तो एक्सपेरिमेंटल टेबल फिल कर सकते हैं और टेबल को फिल करने के बाद हम यहाँ पे रीडिंग्स को ले सकते हैं। तो अब होना क्या है यहाँ पर, ध्यान से देखिए। सबसे पहले सर्किट को समझने की कोशिश करते हैं, सर्किट है क्या। यहाँ पर हमारे पास एक सप्लाई है, ये सप्लाई का जो सिंबल होता है, दिस सिंबल इज कॉल्ड एज अ डीसी सिंबल। बड़ी प्लेट रिप्रेजेंट करती है पॉजिटिव को और छोटी वाली प्लेट रिप्रेजेंट करती है नेगेटिव को। यहाँ पर हमारे पास ऑप्शन है, अगर आप देखते हैं यहाँ पर तो हमारे पास ऑप्शन है कि हम यहाँ पर अपनी मर्जी से ये वोल्टेज चेंज कर सकते हैं। यानी कि अब आपके पास ऑप्शन है कि आप अपने वोल्टेज को कम और ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ आपके पास ऑप्शन है, आप अपने मर्जी से कोई भी डायोड यूज कर सकते हो। आपने कोई भी एक नंबर का डायोड ले लिया, अलग अलग टाइप के डायोड्स होते हैं डोपिंग के हिसाब से, वोल्टेज करंट कैरेक्टरिस्टिक के हिसाब से। तो आपने एक डायोड ले लिया और वो डायोड का सिंबल यहाँ पर है। तो ये हो गया वोल्टेज जो आप प्रोवाइड कर रहे हो बैटरी के थ्रू, ये हो गया आपका डायोड। यहाँ पर आपको रेजिस्टेंस दिखाई देगा, ये सिंबल होता है रेजिस्टेंस का। ऑप्शन है आपके पास, इससे आप अपने रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम ज्यादा कर सकते हो। तो आप क्या कर रहे हो, यहाँ पर दो चीजें बदल रहे हो। एक, सबसे पहले VDC यानी कि वोल्टेज बदल रहे हो, ये वोल्टेज आपने बदला, ठीक है। और एक क्या कर रहे हो आप, यहाँ पर रेजिस्टेंस की वैल्यू बदल रहे हो। अब जो वोल्टेज और रेजिस्टेंस आप बदल रहे हो, यहाँ पर आपके पास है एक एमीटर। एमीटर का काम होता है सर्किट में करंट बताना, और एक है आपके पास वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या होता है, सर्किट के अंदर वोल्टेज को बताना। अब हम इस एक्सपेरिमेंट को करने के लिए स्टेप देखो, बड़े सिंपल से स्टेप है। सबसे पहला स्टेप, हम एक रेजिस्टेंस की वैल्यू फिक्स कर लेते हैं अपने हिसाब से, कोई सी भी।
है ना। लेट्स से हमने इसको फिक्स कर लिया 1K। यहाँ लिख लेते हैं हम इसको, ये कितने पे कह रहे हैं हमें स्टार्ट कर रहे हैं रेजिस्टेंस को, हम यहाँ पर लेके चल सकते हैं कोई भी एक वैल्यू, सेट द रजिस्टर वैल्यू। तो हमने अपने हिसाब से रजिस्टर की वैल्यू यहाँ डिसाइड कर ली 1124 फॉर एग्जांपल, या थोड़ी और कम कर लेते हैं। लेट्स सी, ये हमने रजिस्टर की वैल्यू कर ली। अब हमने यहाँ पर अपने डीसी को 0 से स्टार्ट किया, 0.2 से। अब देखना धीरे धीरे हम यहाँ पर सबसे पहले जो भी रीडिंग आएगी, यहाँ पर ऑप्शन आएगा ऐड टू टेबल, आप इसको टेबल में ऐड कर देंगे। जो भी आप यहाँ पर ले रहे हो, तो देखो आपने स्टार्टिंग में सीरियल नंबर 1 वोल्टेज 0 करंट 0। अब आपने वोल्टेज को बढ़ाना शुरू किया, अब आपने 0 से वोल्टेज की वैल्यू को 0.3 ले लिया, ऐड टू टेबल। और ये जो भी वैल्यू आपने ली, वो वैल्यू आपने कहाँ पे ले ली, वो आपने ले ली ऐड टू टेबल। तो जो भी रीडिंग आप लेंगे वो रीडिंग आपकी यहाँ पर ऐड होती चली जाएगी। तो आप यहाँ पर टेबल में ऐड करेंगे इसको, और चेंज कर सकते हैं आप ऐड टू टेबल। तो जो भी आप यहाँ पर रीडिंग लेंगे, दैट रीडिंग विल बी एडेड टू टेबल। ये आपने रीडिंग ले ली, ऐड कर दी टेबल पे। फिर आपने रीडिंग ली, ऐड टू टेबल कर दी। फिर आपने रीडिंग ली, ऐड टू टेबल कर दी। अब जो भी रीडिंग यहाँ पे डीसी वोल्टेज की बदलते जाएंगे, वो सब यहाँ पर आती जाएगी। आपको लगता है बीच में कोई रीडिंग आपकी मिस हो गई है, आप उसे भी लेना चाहते हो, वो भी ले लिया आपने, वो भी ऐड टू टेबल हो गई। फिर आपने और ऐड टू टेबल। तो जितनी रीडिंग आप चाहेंगे उतनी रीडिंग आप यहाँ ले सकते हैं, और सारी की सारी रीडिंग्स आप यहाँ पर ऐड टू टेबल कर सकते हैं। ये आपने रीडिंग बढ़ाते जाइए और यहाँ पर आप ऐड टू टेबल करते जाइए। सिंपल प्रोसेस है, आपने कुछ नहीं करना है। ये आपका सर्किट बना हुआ है, इस पूरे के पूरे सर्किट में, इस पूरे के पूरे सर्किट में आपने यहाँ पर वोल्टेज दिया हुआ है। आप इस वोल्टेज की वैल्यू को चेंज कर रहे हैं। यहाँ पर रेजिस्टेंस है जो आपने फिक्स कर दिया। ये आपका सर्किट में डायोड लगा है, ये करंट बता रहा है सर्किट के अंदर का, ये डायोड के अक्रॉस वोल्टेज बता रहा है। आप इस वैल्यू को चेंज कर रहे हैं, और जो भी रीडिंग आपकी आ रही है एमीटर की और वोल्ट मीटर की, एमीटर की और वोल्ट मीटर की, वो आपके टेबल में आप ऐड करते जा रहे हैं। तो मैं सिंपल ऐड टू टेबल रीडिंग ऐड करता जा रहा हूँ, और ये मैंने यहाँ रीडिंग इतनी सारी ऐड कर दी। अब आप देखिए, जब आपने इतनी सारी रीडिंग ऐड कर दी, 14 रीडिंग मैंने ऐड कर दी। अब हमें करना क्या था, लास्ट टाइम ने देखा था कैरेक्टरिस्टिक का मतलब होता है ग्राफ, वोल्टेज और करंट के बीच में ग्राफ। इस ग्राफ को लेट्स बी प्लॉट, अब इसको हम प्लॉट करते हैं। सो वी हैव हियर ऑप्शन, बाय दिस वी कैन प्लॉट दिस। ये देखो, so if you see here what reading has been come, we are able to get this output response. So these are the values you kept here. ये वो values हैं जो आपने यहाँ पर choose की, and your simulator, your device is giving an output, and you can say okay, जो हमने study किया था, the study we have, the reading we have like the very same. So same type of reading you are receiving here. So this is a very simple process, easy process. By this you can easily get the reading. Again I am repeating this process. करना क्या है, ये सिमुलेटर आपको मिलेगा, I will be sharing this link to you. सिमुलेटर मिलेगा, just fix the value of resistance, कोई भी resistance का value fix कीजिए. Keep changing the value of VDC, any value you can choose from VDC. Keep on adding into table, table में add करते रहिए जो भी value आपको मिलता है. Keep on adding into the table. तो ऐड करते जाएंगे, एक बड़ा सा टेबल तैयार हो जाएगा, यू विल हैविंग नंबर ऑफ रीडिंग्स। और जब वो आपकी 10-15 वैल्यूज हो जाती हैं, 10 to 15, देन यू हैव अ चांस टू प्लॉट इट। तब आप इसको प्लॉट कर देंगे, तो जो भी आप प्लॉट करेंगे वो प्लॉट आपका यहाँ पर करवा जाएगा। और इसको आप प्रिंट ले सकते हैं, यहाँ से प्रिंट ले सकते हैं। प्रिंट का मतलब है आप इसको सेव भी कर सकते हैं। तो और या आप अगर मोबाइल पे काम कर रहे हैं, तो आप वहां से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और स्क्रीनशॉट लेके अपनी फाइल में तैयार कर लीजिए। ये आपका एक्सपेरिमेंट नंबर 1 था। इस तरीके से तो ये आपका स्क्रीन बन जाएगी, सेव कर सकते हैं। सो यू पीपल आई सपोज नो दिस, आई थिंक आप सब लोग ज्यादातर जानते हैं इस चीज को कि किस तरीके से किया जा सकता है।
कैसे सेव किया जा सकता है, ये सारी वैल्यूज आप जानते हो, इस तरीके से आप इसको सेव कर सकते हो। सो आई एम कैंसिलिंग इट आउट, अगर आपको लगता है जरूरत है तो ये। सो दिस इज एग्जैक्टली द एक्सपेरिमेंट नंबर 1. बाय दिस यू कैन इजीली हैव your V voltage and current characteristic in forward bias of diode. So I'm opening this session for question answer. So whatever we are doing, जो भी हम कर रहे हैं वो कहाँ पे जाता है, हम यहाँ वोल्टेज को चेंज करते हैं, we are changing the voltage, और वोल्टेज को चेंज करने के रेस्पेक्ट में वी आर गेटिंग अ चेंज इन करंट, करंट बदलता है, और जो वोल्टेज जो करंट हम दे रहे हैं वो यहाँ रिकॉर्ड होते चले जाते हैं सिर्फ इस बटन को दबाने से। तो चेंजिंग वोल्टेज, चेंजिंग करंट, रिकॉर्डेड, जब ये सब रिकॉर्ड हो जाता है, 14 से 15 रीडिंग आपकी रिकॉर्ड हो जाती है, तब इसमें इट हैज अ ऑप्शन प्लॉट। तो जो काम आपको ग्राफ पेपर पे करना पड़ता था निशान लगा लगा के, दिस सिमुलेटर इज हेल्पिंग यू, प्लॉट का बटन दबाइए एंड यू वुड बी एबल टू गेट दिस आउटपुट। ये अच्छा, ये किया किसके लिए हमने, ये सारा का सारा हमने किया है एक डायोड जैसी डिवाइस के लिए। तो हमने ये डायोड की फॉरवर्ड बायस कैरेक्टरिस्टिक के लिए पूरा एक्सपेरिमेंट किया है। डायोड की इंटरनल फंक्शनिंग, इंटरनल वर्किंग, स्ट्रक्चर, डिजाइनिंग आपके सिलेबस में है। पूरी थ्योरी जब आप पढ़ेंगे तो पूरा डायोड का स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, कैसा डायोड होता है, किस तरीके से वर्क करता है ना, दैट ऑल विल बी देयर। हमारा काम था इस डायोड की वोल्टेज और करंट कैरेक्टरिस्टिक को समझना। आज की लैब मैंने आप लोगों के लिए शुरू कर दी है। मीनवाइल अगर आपको लगता है इसमें और भी आपको कुछ पूछना है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, और हम इस लैब को आपके लिए रिपीट भी कर सकते हैं। आई कैन रिपीट दिस लैब फॉर यू ऑल्सो, सो दैट इफ यू आर फीलिंग अनकंफर्टेबल विल गो फॉर अगेन। जब तक मैं आपको ये लैब का लिंक शेयर करूंगा, यू ऑल डू इट, इसको सब लोग ट्राई करेंगे। एंड क्वेश्चन इज, सर हाउ टू मेक अ सर्किट, what are the basic things that need to be kept in a mind while making a circuit? Very good. So while we are making a circuit, सबसे पहले जरूरी है जो कंपोनेंट आप उसमें लगा रहे हैं वो कंपोनेंट कितना कितना वोल्टेज और करंट की वैल्यू ले सकता है। जैसे आपने अपने घर में 220 वोल्ट है, एक बल्ब लगा दिया, आप जानते हैं 220 और 230 पे बल्ब काम करेगा, लेकिन 400 वोल्ट अगर है तो क्या वो बल्ब 400 वोल्ट पे काम करेगा? नहीं, क्योंकि उसकी कैरेक्टरिस्टिक नहीं है 400 वोल्ट पे काम करने की, उसकी कैरेक्टरिस्टिक 220 230 की है। 400 पे वो खराब हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा या ब्लास्ट हो जाएगा हाई वोल्टेज की वजह से। तो ये सर्किट बनाते वक्त हर कंपोनेंट की कैरेक्टरिस्टिक को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा, दैट्स इंपॉर्टेंट। तो वही हमने यहाँ पर क्रिएट किया।